Good morning, dear students. Standard 11 Science, chapter number 10. In previous lecture, we can discuss a Venturi meter and Bernoulli's equation. Now, today we have discussed Stokes law. What is Stokes law? So, when a body moves through a viscous medium, for example, glycerin, oil, honey, is called viscous medium. So, when a body moves through a viscous medium, the layer of the medium in contact with the body drift along with it. Hence, relative velocity is produced between different layers of fluid, and as a result a resistive force act on the body moving through the medium. This resistance force is known as viscous force. When a body moves through a viscous medium, the layers of the medium in contact with the body drift along with it. Hence relative velocity is produced between two layers, and resistive force act on the body moving through the medium, and this type of resistance force is known as viscous force. और लास्ट में स्टोक्स लॉ का सेंटेंस, द विस्कस ड्राफ्ट फोर्स ऑन द बॉडी फॉर विस्कोसिटी ऑफ ईटा, लार्ज विस्कस मीडियम, स्मूथ, स्मॉल रेडियस, spherical solid. So resistive force is denoted by F equal to 6 pi eta RV. 6 pi eta RV, and this formula is known as Stokes law. What is R? So R is a radius of sphere and V is a velocity. F is a resistive force or viscous force acting on sphere in upward direction, but sphere moving in viscous medium in downward direction. तो ये था स्टोक्स लॉ. With the help of Stokes law, we can derive a terminal velocity. बट ये जो एक्सप्लेनेशन है ये गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में था. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखना है, ओनली फॉर इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन है? तो v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा रो माइनस रो नॉट या फिर रो माइनस सिग्मा. फॉर्मूला कैसा है? तो vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी divided by eta rho minus rho naught, where rho naught is a density of liquid and rho is a density of sphere. G 9.8, we know that R is a radius and eta is a viscosity coefficient. And from this equation Vt proportional to R square rho. तो ये सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर which can moving in the viscous medium. Next is Reynolds number. According to Osborne Reynolds observed that turbulent flow is less likely for viscous fluid flowing at low rates. According to Reynolds number, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया कि भी कोई भी ट्यूब है और वो जो ट्यूब ऑफ फ्लो है उसके अंदर जो भी फ्लूइड मोशन कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स. वन इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी इज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डी फॉर डायमीटर एंड ईटा इज अ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. यानी जो भी ट्यूब है उसके अंदर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो. वन इज स्टेडी फ्लो मीन्स जो भी आपने ट्यूब सिलेक्ट की है उसके अंदर जो फ्लूइड मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मीन्स फ्लूइड फ्लो, स्टेडी फ्लो.
सेकेंड नंबर के अंदर है टर्बुलेंट फ्लो एंड थर्ड इज अ मिक्स फ्लो. तो अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स कौन सा फ्लो होगा वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड है. वन इज डायमीटर, सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, थर्ड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. और वो 4 फैक्टर्स के ऊपर से रेनॉल्ड नंबर उसने डिस्क्राइब किया. एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज डिनोटेड बाय RE and RE is equal to rho VD by eta. Rho VD by eta, where rho is the density of fluid, V is the velocity of fluid, eta viscosity coefficient, and D is the diameter of the pipe. रेनॉल्ड नंबर इज यूनिटलेस. इसके अंदर सब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, रेनॉल्ड नंबर फाइंड करो. अगर आपको रेनॉल्ड की वैल्यू लेस देन 1000 मिल रहा है तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो. अगर ग्रेटर देन 2000 मिल रहा है तो फ्लो इज टर्बुलेंट. एंड बिटवीन 1000 एंड 2000 मिल रहा है तो फ्लूइड फ्लो इज अ मिक्स फ्लो, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट बोथ, मीन्स अनस्टेडी फ्लो. तो ये है रेनॉल्ड नंबर. नेक्स्ट इज ये सब टॉपिक हो गए हैं. रेनॉल्ड नंबर इज यूनिटलेस. यूनिटलेस मीन्स डायमेंशनल लेस. नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. Explain surface energy and surface tension. What is surface energy and surface tension? An extra energy is associated with the surface of liquid. The creation of more surface keeping the volume fixed require additional energy. कोई भी अगर आप ऐसे U शेप के अंदर कोई फ्रेम बनाओ और वो फ्रेम को आप कोई भी सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर पूरा रख दो, ये जो 2 आर्म्स है वो 2 आर्म्स के बीच में कोई एक मूविंग रॉड रखो PQ, उसको हम थ्रेड के साथ कनेक्ट करें, ये पूरा सिस्टम सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डुबाओ तो यहाँ पे एक फिल्म बनेगी. फिल्म जैसे हम वो डिफरेंट कलर्स के जो एयर बबल्स हम बाहर निकालते हैं, ऐसा वो फेयर में से छोटे बच्चे यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा सॉफ्ट सॉल्यूशन का. ये जो रॉड है उसको आप थ्रेड्स के साथ थोड़ा खींचो, मीन्स ये जो रॉड है उसको यहाँ पे लाओ. कौन से पोजीशन पे? P', Q'. मीन्स इतना एरिया इंक्रीज हुआ, मीन्स इतना एरिया इंक्रीज हुआ. ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है उसके लिए हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये जो सरफेस है वो भी इंक्रीज होगी, मीन्स लेयर जिसको हम बोलते हैं फिल्म, तो वो फिल्म भी इंक्रीज होगा. तो एज शो इन फिगर, यू शेप फ्रेम इज मेड फ्रॉम वायर. द वायर PQ इज स्लाइडली विदाउट फ्रिक्शनल ओवर द राइट AP एंड BQ. यहाँ पे ये है AP एंड BQ, ये पूरा एक फ्रेम है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रेम्स इज इक्वल्स टू L. तो दिस फ्रेम इज डिपेंड एंड टेक आउट द सॉफ्ट सॉल्यूशन. देन thin film APQB is formed from the frame. Film is in equilibrium condition. Distance between 2 frames is L, small l. अब ये जो फ्रेम है उसको हम D जितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, इसको हम D जितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं. तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू, वी नो दैट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर आप डॉट हटाओ तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, बट इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा इक्वल टू 0.
तो cos 0 1, तो वर्क डन बिकम्स मैक्सिमम FD. From the conservation of energy, this energy storage in as a additional energy in the film. तो वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इज 2LD इंटू एस, क्योंकि यहाँ पे एस है वो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन यानी वो फोर्स है, वन टाइप ऑफ फोर्स. एंड 2LD इज एरिया, चेंज इन एरिया, डेल्टा ई. यहाँ पे इसकी दो फ्री सरफेस है. जैसे अगर हम एयर बबल की बात करें, अगर आप एयर बबल की बात करो तो सपोज ये एयर बबल है, तो इसके टू फ्रीज, इफ एयर बबल्स मूविंग इन एयर मीडियम, तो इसके अंदर दो फ्री सरफेस है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड. बट यही एयर बबल अगर वाटर के अंदर होगा, अगर वाटर के अंदर होगा तो उसकी सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, इनसाइड. तो ऐसे अगर आपको देखना है, यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड. यहाँ पे जो फिल्म बन रही है इसके अंदर दो फ्री सरफेस है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 2LD, वैसे एरिया मीन्स L इंटू डी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट यहाँ पे 2 फ्री सरफेस है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया. तो सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू W बाई डेल्टा ए, बट W हमने फाइंड किया FD एंड डेल्टा ए मीन्स 2LD, डी कट, तो सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू F बाय 2L. सरफेस टेंशन F बाय 2L. सरफेस टेंशन का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर. सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर. तो डायमेंशन होगा M1 L0 T-2. सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L0 T-2. तो ये हुआ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी.